اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 8 سپٹمبر 2017 ہے۔ میں عیسیٰ مسیح مہدی مہادیو ہوں۔ میں دنیا کا سب سے بڑا برانڈ ہوں، کمرشیل برانڈ ہوں۔ میں سارے ورلڈ کے انڈسٹریز کے لیے، سارے ورلڈ کے پروڈکٹس کے لیے، جس کے لیے ایڈورٹائز کر دوں وہ پروڈکٹ بہت آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن میں ایڈورٹائز تبھی کر سکتا ہوں تب پوری تحقیق کر لوں اس کے بارے میں۔ میں ورلڈ کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہوں مسلمانوں کے لیے۔ میں ورلڈ کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہوں یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، بدھ مت کے لوگوں کے لیے، سارے ورلڈ کے لوگوں کے لیے، ایتھیسٹ کے لیے بھی۔ میں ورلڈ کا سب سے بڑا برانڈ ایمبیسڈر ہوں، کیونکہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام مہادیو ہوں، جس کا انتظار ساری جہاں کے انسانوں کو تھا، جس کا انتظار وید پرانوں کو تھا، جس کا انتظار قرآن حدیث کو تھا، جس کا انتظار سارے ورلڈ کے علماء دین کو تھا، جس کا انتظار سارے ہندوؤں کو تھا، عیسائیوں کو تھا، یہودیوں کو تھا، مسلمانوں کو تھا، سارے ورلڈ کے لوگوں کو تھا۔ میں وہ ورلڈ کا سب سے بڑا برانڈ ہوں، کمرشیل برانڈ۔ سارے ورلڈ کے لیے میں ایک ایسٹ ہوں۔ میں آخری سیویئر بانڈ 007 ہوں۔ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام مہادیو ہوں، ورلڈ کا شہنشاہ وشوناتھ بھگوان شنکر۔ میں وہ بھگوان ہوں نریندر مودی کا، میں بھگوان ہوں اکھیلیش یادو کا، میں بھگوان ہوں یوگی کا، میں بھگوان ہوں سارے ہندوؤں کا، میں بھگوان ہوں سارے بدھ مت کے لوگوں کا، میں میتریہ ہوں۔ میں جب کسی کے ساتھ ہو جاؤں تو پھر ہندو مسلمان کا جھگڑا، یہودیوں کا جھگڑا، عیسائیوں کا جھگڑا سب ختم ہو جائے گا۔ میں جس کے ساتھ ہو جاؤں وہ دنیا کا طاقتور انسان ہو جائے گا۔ میں جس کے ساتھ ہو جاؤں یعنی بھگوان شیوا، یعنی مہادیو، یعنی مہاوشنو کا آخری اوتار، کل کی اوتار لارڈ شیوا، بھگوان کے معنی میسنجر کے، رسول کے ہیں، نبی کے نہیں۔ میں نبی نہیں کسی بھی قسم کا۔ میں دنیا میں بہت بڑا ایسٹ ہوں پولیٹیشینز کے لیے۔ میں دنیا میں بہت بڑا ووٹ بینک ہوں، لیکن دنیا سوال کرے گی ان پولیٹیشینز سے، پہلے یہ بتاؤ کیا واقعی میں یہ وہی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے قرآن سے، حدیث سے، توریت، انجیل، زبور سے، وید پرانوں سے۔ وہ جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ جواب تیار کرنے کے لیے 2 دن، 4 دن، 10 دن کافی ہیں۔ آپ لوگ بڑے بڑے پولیٹیشینز جاتے ہیں ریلیز میں ووٹ کے لیے، آپ لوگ بڑے بڑے پولیٹیشینز جاتے ہیں فلم اسٹاروں کے پاس مدد کے لیے، آپ لوگ بڑے بڑے انڈسٹریز جاتے ہیں ماڈلز کے پاس اپنے پروڈکٹ کو بڑھانے کے لیے، لیکن آپ کے پاس ایک سوال ہے، کیا وہ واقعی میں وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اوریجنل ہوں جس کا انتظار سارے ورلڈ کو تھا یا نہیں؟ تو آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ پہلے آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ میرا میسیج ہے اعظم خان صاحب اور ان کے اہل خاندان کو۔ کہاں ہے آپ کے پاس جواب؟ وہ جواب تیار کیجئے، ہاتھ میں تحقیق کر لیجئے۔ کیا یہ شخص پاگل ہے؟ کیا یہ شخص جھوٹا ہے؟ کیا میں غلط ہوں یا صحیح، یا تحقیق کرنا ہے؟ اور کیا انٹیلیجنٹ ہوں؟ کیا واقعی میں وہی عیسیٰ ابن مریم کیا مہدی علیہ السلام بن کر جنم لیا ہے اس سرزمین پر، ہندوستان پر؟ اس کی تحقیق آپ کے پاس ہوگی جواب۔ تو 10 علماء دین کو ساتھ لے لیجئے، سارے ورلڈ کے لیے نکلیے، میرے ساتھ بچانا ہے انسانیت کو، عذاب کا وقت تیزی سے آ رہا ہے۔ تو وہ جواب آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے پہلے، تب لوگ پوچھیں گے، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ جھوٹے مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو رہے ہیں، ایک پولیٹیشین ہو کر، ایک جو ہے منسٹر ہو کر، ایکس منسٹر ہو کر، آپ کے اوپر الزام لگائیں گے، الٹا آپ کو بدنام کر دیں گے۔
तो आपके हाथ में पहले उस जवाब होना चाहिए। बेशक साथ में कुछ इख्तलाफात भी रहेंगे, शिया हजरात के रह सकते हैं, सुन्नी हजरात के रह सकते हैं, हिंदुओं के रह सकते हैं, ईसाइयों के रह सकते हैं, लेकिन उनके एतराज़ात टूट टूट के तबाह हो जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में होगा सच्चा सबूत उलमाए दीन का। जब 10 उलमाए दीन इसको सर्टिफाई कर दे ओरिजिनल, तो वर्ल्ड का हर आलिम दीन वही किताबें पढ़ता है जो ये उलमाए दीन पढ़ते हैं। आज तारीख़ 8 सितंबर 2017 है। ये मेरा मैसेज है, मेरा ऐलान है आज़म खान साहब को, उनके बेटे अब्दुल्ला को और अदीब भाई को और उनके अहले ख़ानदान को। आप लोगों ने बड़ी दीन की खिदमत की है, बड़ा ही लोगों के लिए प्रचार किया है, हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए काम किया है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज आपको इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है हिंदुओं से, योगी से, नरेंद्र मोदी से, तो फिर इनका जो रूहानी बाप है भगवान शिवा, अगर वो आपके साथ हो जाए तो ज़रा सोचिए। भगवान शिवा यानी शिव भगवान, यानी बरकत वाला भगवान, यानी भगवान के माने रसूल के होते हैं, जो माँ की भग से पैदा होता है। भगवान के माने अल्लाह के नहीं, महाविष्णु के नहीं। नोट करें, कंपैरेटिव स्टडीज़ चाहिए इसके लिए। जब वो भगवान आपके साथ हो जाए तो फिर पुकार कर कहना, ऐ नरेंद्र मोदी तुम्हारे भगवान शिव हमारे साथ हैं, ऐ नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, ऐ हिंदुओं तुम्हारे भगवान शिव हमारे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम निकले। अब हमें आपस में डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपस में सुधार की ज़रूरत है, ओरिजिनल सुधार, सच्चा सुधार। याद रखो, आपने मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मेरे सग्गे चचेरे परदादा, मौलाना शौकत अली मेरे सग्गे चचेरे परदादा, जिन्होंने दुर्रे शहवार, प्रिंसेस दुर्रे शहवार और नीलूफर के अख्त करवाया था हैदराबाद में मीर उस्मान अली खां के बेटों के साथ। उनके बड़े भाई जुल्फ़िकार अली गौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जुल्फ़िकार अली गौहर का मेल नस्ल, यानी बी अम्मा, आबादी बानो, आबादी बेगम बोलो, आबादी बानो बोलो, आबादी उनका नाम, और उनके हस्बैंड हाफिज अब्दुल अली, उनका डायरेक्ट नस्ल, मेल नस्ल मोहम्मद मौदूद अहमद खान ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मान मेहदी अलैहिस्सलाम आपको ये ऑफर दे रहा है। और ये निकला है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम भगवान शिवा हिंदूस का। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मेरे आने की बशारत थी तस्वीरी ज़बान में। ये लोग एडवांस में मेरे तस्वीरों की पूजा करते रहे हैं ज़माने से। याद रखो, जब आप कहेंगे कि वो भगवान वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम भगवान शिवा है ओरिजिनल, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये अल्लाह ताला की पॉलिटिक्स है, अल्लाह ताला की सच्चाई ज़ाहिर हुई है, तब आपको एक ताकत मिलेगी। वो ताकत क्योंकि आपने मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली रोड रखा, मौलाना जौहर के नाम से रोड रखी, बी अम्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, फला काम किया, और आपको अल्लाह ताला ने चुना है इस काम के लिए। मैं वोट बैंक हूँ आपके लिए, रामपुर के लिए नहीं, यूपी के लिए नहीं, सारे वर्ल्ड के मुसलमानों के लिए। आपको बताइए कौन सा इलाका चाहिए। आप बोलेंगे भाई मैं एक मामूली एमएलए रह गया हूँ, पहले एक्स मिनिस्टर था, एमपी था, लेकिन मेरा रुतबा है, लेकिन अभी मुझे झगड़ा करना पड़ रहा है पोजीशन से, हमें खुद मौत का खौफ हो गया है। नहीं, अब आपको ताकतवर बनने का वक्त आया है। अल्लाह ताला ने आपको इस्तेमाल किया है, मेरे परदादाओं का नाम करने के लिए। जंग लग गया था, नाम को आपने चमकाया है, तो आपको ऐसे ही ज़ाया नहीं करेगा इंशाअल्लाह। आपके हाथ में वो जवाब कहाँ है? दुनिया पूछेगी, मुसलमान पूछेंगे आपसे, ईसाई पूछेंगे, यहूदी पूछेंगे, बोलेंगे किस बिना पर आप एक शख्स को जो ऑलरेडी इतने मामलों में इन्वॉल्व है, जो बदनाम है, जिसे पागल करार दिया गया, जो बेवकूफ़ कहते हैं लोग, जो कई केसों में इन्वॉल्व है, बताइए आपके पास सबूत क्या है? तब आपके पास जवाब क्या है? आपके हाथ में जवाब होना चाहिए, बोलना यह जवाब है। कुरान में जो लिखा था, हदीस में जो लिखा था, वेद पुराणों में जो लिखा था, वो निशानियाँ जो लिखी थी मसीह दज्जाल आने की, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा मसीह दज्जाल निकले, फिरोज जैसी कौम, और दावतुल मिनल अर्ज़ का जो जिक्र निकला है कुरान में सूरह नमल आयत नंबर 82 में, और उसके हदीसों के उसके हिसाब से जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही देने वाले थे, जो निकल गए और ज़ाहिर हो चुका है। और ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के जो सबूत थे, सारे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, माँ बाप का नाम, बच्चों का नाम, बीवियों का जिक्र, ससुरों का जिक्र, पैदाइश, वक्त, इलाका, सीज, वो सब इनके ऊपर मैच हुए हैं। मोहम्मद मौदूद अहमद खान पर मैच हुए हैं, और वो कोई और नहीं, वो मौलाना जुल्फ़िकार अली गौहर, यानी आबादी बानो बी अम्मा का सब बड़ा बेटा, जुल्फ़िकार अली गौहर का सग्गा बड़ा बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा मोहम्मद मौदूद अहमद खान है मेल नस्ल से। लिहाजा ये वही अली ब्रदर्स का सपूत है वर्ल्ड में इस वक्त।
जिसको अल्लाह ताला ने ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बनाकर ज़ाहिर किया है। मसीह दज्जाल के ग्रुप में फितने क़ादियानियत, फितने अहमदियत, ये जो है इम्तिहान अजीम था, ये था मसीह दज्जाल लोग पहचान नहीं पाएंगे। मैं आपके लिए ब्रांड हूँ, मुझे चाहिए मदद आपसे। अल्लाह ताला एक दूसरे से लेन देन करवा रहा है। क्या आप लोग अभी साथ होंगे कि नहीं, ये आप लोगों को मैं ऑफर है। और सारे मुसलमान उलझ पड़ेंगे, बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, तो बोलना है मुसलमानों को सब्र, तहक़ीक़ करने का वक्त है मेरे भाई। जो शख्स अपने आप को सरेंडर कर रहा है उलमाए दीन को, इस्लामी कोड चैलेंज करके, उसके ख़िलाफ़ शरारत नहीं, उसकी नीयत है कुरान हदीस के हक़ में, उसकी ताईद है इस्लाम के हक़ में, उसकी ताईद है सब मज़हबों के हक़ में, लिहाजा तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। उलमाए दीन से बड़ा नहीं कोई, लेकिन उलमाए दीन से बड़ा भी एक शख्सियत है, वो है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम महादेव। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपको बोलना है कि उलमाए दीन बड़े या ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बड़े। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बड़े, वही किताबें रखी हुई थी ज़माने से जिसे आप लोग उलझन में उलझे हुए थे, जिसमें समझ नहीं पाए थे क्योंकि प्रोफेसीज मोहरबंद थी, सील्ड थी। वो आज खुलने का वक्त आया। 7 सितंबर 2017 को जब मैं आपके घर आया, मुलाकात किया, आपने फ़ोटोज़ क्योंकि वीडियोज़ लेने से इनकार किया, लेकिन मेरे पास दूसरी मुलाकात का मौका नहीं बाकी रहने वाला था, क्योंकि मेरे लिए सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जा सकता है, क्योंकि वीडियोस मेरे पूरे वायरल हो सकते हैं। मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल पर्सन हो चुका हूँ, लिहाजा अब आपको तहक़ीक़ करनी है। ये मेरा वीडियो आपके लिए है, अदीब भाई के लिए है और आपके बच्चे अब्दुल्ला के लिए है। भले अदीब भाई को जो है नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, मुझे मालूम हुआ है उनके बारे में भी, चलिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सिंपल लाइफ गुजारना चाहते हैं इस मामले से दूर तो ठीक है, लेकिन आखिर वो है तो हमारे ही, आप हमारे ही हैं। आपने इतनी खिदमत की है इस ख़ानदान की। अल्लाह ताला ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था तुर्किस्तान के खलीफा मजीद के साथ, मेरे परदादा मौलाना मोहम्मद अली जौहर शौकत अली के साथ, समझ रहे हैं आप। और उसी नस्ल से अल्लाह ताला ने, उसी बड़ी नस्ल से, यानी उनके बाप की नस्ल से अल्लाह ताला ने ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को भेजा है, जो दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से आ रहे हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसाक अलैहिस्सलाम की मेल नस्ल है, यानी पैटर्नल नस्ल है, और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की मैटरनल, यानी मेरे नाना होते हैं रिश्ते में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे दादा होते हैं रिश्ते में दाऊद अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मैं उनकी नस्ल से हूँ, दो ख़ानदान का मिलन। मैं पठान आफरीदी, साथ में मेरी वालदा केदार कबीले की कुरैशी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों ख़ानदानों का मिलन हूँ। मैं अरबी भी हूँ, मैं इसराइली भी हूँ, यहूदी लफ्ज़ निकला है यहूदा से। यहूदा एक ज़माने के पैगम्बर, एक ज़माने के अल्लाह के मुसलमान रहे हैं, उनकी दो नस्लें हो गई हैं आज। वो हैं काफिर यहूदी जो इसराइल में बसे हुए हैं, दूसरे मुसलमान यहूदी जो आप भी हो सकते हैं और जो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ, मैं वोट बैंक हूँ आपके लिए। अब आपको तहक़ीक़ करना है, वो जवाब हासिल होना है आपको, क्या वाकई में ये वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है जिसकी बशारत कुरान हदीस में है? क्या वाकई में वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम महादेव कल्की अवतार है जिसकी बशारत वेदों में, पुराणों में है? क्या ये वाकई में वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है जिसकी बशारत बाइबल में है, बुद्ध मत के लोगों में है, सारे वर्ल्ड में है, जिसका इंतज़ार किया जा रहा है? तो शहींशाह हमारे साथ है अल्लाह की तरफ से। तो फिर अब हमें डर का, अब आपको दावत देना है मुसलमानों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, सबको साथ में। अपना पॉलिटिकल जो कैरियर है उसको आप बहुत आगे ले जा सकते हैं, MP बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन अब पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की बर्बादी का वक्त करीब आ रहा है। अब चलेगा मेरा ही राज, महादेव का राज, विश्वनाथ। मुझे किसी के वोट की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत है। मुझे जाहिल लोग पहचान ले इल्म की आँख से, मुझे सिर्फ रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत है, मुझे पहचानने की ज़रूरत है। याद रखिए, मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूँ और मैं आज सफ़र कर रहा हूँ AC ट्रेन में अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने काम पर हूँ। और सारी मीडिया के बारे में सारी मीडिया जानती है। आज मैं हिंदुओं को एक करने के लिए, मुसलमानों को एक करने के लिए, सिख ईसाइयों को एक करने के लिए, प्यार मोहब्बत से जीतने के लिए आ चुका हूँ, और मेरा साथ देंगे तो कामयाब होंगे।
नहीं तो याद रखिए अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, शोहरत दी है, ताकत दी है, रामपुर दिया है, मेरे दादाओं की मोहब्बत दी है, जिसको आपने रंग साफ करके उनका नाम चमकाया है ताकि आपको भी उसकी चमक का फ़ायदा मिले। अब उसकी चमक का सबसे बड़ा फ़ायदा ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आपके पास आया है, भगवान शिव आपके पास आया है, नरेंद्र मोदी का भगवान आपके पास आया है, अखिलेश यादव का भगवान आपके पास आया है, सारे हिंदुओं का भगवान खुद आया है आपके पास और आपको बोलना है, अरे योगी आ जाओ, तुम्हारा भगवान शिवा हमारे साथ है। अरे योगी, अरे नरेंद्र मोदी, अरे अखिलेश यादव, अरे सारे हिंदू आ जाओ, भगवान शिवा हमारे साथ है। उनका दिल बढ़ जाएगा, उनका दिल फूल जाएगा। वो बोलेंगे वाह, एक ही मुसलमान ये कह रहा है, तो मुसलमान बुरा मानेंगे, बोलेंगे भगवान शिवा। अरे बोलना भगवान शिवा कौन है? वही ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कुरान हदीस के मुताबिक। अरे रे रे रे, बात पूरी एक होने की आ गई है। अब झगड़े वॉर्स ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा वीडियो आपके लिए ख़ास। देखिए आज 8 सितंबर 2017 है। मैं बहुत जल्दी में आपसे मुलाकात किया, जल्दी से आपने मिठाई का भी इंतज़ाम किया और मैं मिठाई को नो नहीं कर सकता था, पीली कलर की थी, आई लाइक पीला कलर। सॉरी, मैंने लेकर जेब में रख लिया जल्दी। फिर आपने चाय ऑफ़र की, वो वाली चाय मैंने पी ली। और आपको नहीं मालूम कि मैं कितना कंट्रोवर्शियल शख्स हूँ। आपके लोग जितने भी बाहर खड़े हुए थे, ये हाथ में फ़ोन्स लिए हुए वीडियोस देख रहे थे। अगर मेरे वीडियो देख लेते तो 5 मिनट के अंदर पूरे इलाके में वायरल हो जाती कि वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम जिसके ऊपर इतने हमले हुए हैं, जिसने अपने आप को ये कहा है वो यहाँ आया हुआ है। तो फिर आपको भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाता, आपको मतलब आपको नहीं, मेरे को हो जाता आप ही के इलाके में। इसीलिए मुझे जल्दी करके निकलना था। मैंने 1-2 स्नैप जो आपके साथ लिए हैं वो लेकर जा रहा हूं और मैं काम पर लगा हूं। मेरे साथ हो जाइए, वक्त तेज़ी के साथ बढ़ रहा है आगे, आपको देर नहीं करनी चाहिए। याद रखिए मैं जो कह रहा हूं ये बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह की तरफ से ऑफ़र है। अगर आप इस ऑफ़र को नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वक्त नहीं देंगे तो नहीं मानेंगे। और फिर जब आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको खुद भी तहक़ीक़ करना है, उलमाए दीन के बोर्ड को बिठाना है तहक़ीक़ के लिए, 2 दिन कम से कम खर्चा करना है थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप बात। और रिजल्ट बहुत बड़ा हाथ को लगेगा आपके। उससे पहले आप इतना भी क्यों करें, आज के ज़माने में कौन करता है, लेकिन आप खुद से तहक़ीक़ थोड़ा सा कर लें मेरी वेबसाइट के ज़रिए, मेरे वीडियोस के ज़रिए जो लिस्ट मैं दूंगा आपको। फिर उसके बाद देखिए पूरा आज़मगढ़, सॉरी आपका नाम इतना मशहूर है कि वो रामपुर का नाम आज़मगढ़, खैर रामपुर, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा वर्ल्ड के मुसलमान आपके साथ। आप बताइए कौन से इलाके के मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और मेरा मिनिस्टर अपॉइंट करना बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि मेरी वो सल्तनत है जो हो जाएगी इंशाअल्लाह। वो सारी आपके पॉलिटिशियंस सारे सिस्टमों से ऊपर है, आप खुद जानते हैं। उलमाए दीन से पूछिए ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है, क्या वो महादेव विश्वनाथ जो है वो इन पॉलिटिक्स ये डेमोक्रेसी से ऊपर है क्या? नहीं। डेमोक्रेसी करना भी अल्लाह की चाल थी ताकि हर इंसान को अख्तियार मिले तहक़ीक़ करने का, हर इंसान के हाथ में वोट आ जाए, हर इंसान के हाथ में वो छड़ी आ जाए। अब आप याद रखिए मेरे साथ होंगे तो राज करेंगे आप, आपकी नस्ल। मैं अगर ठहर के ऐलान कर दूं, कुछ शर्त व शराइत पर आपको साइन करने होंगे, उलमाए दीन का बोर्ड साथ लेना होगा। उसके बाद आज आप MLA हैं, MP हो या मिनिस्टर हो, लेकिन ज़रा सोचिए जब ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आपको ऐलान कर देगा कि अब आपके बाद आपकी नस्ल ही के यहाँ पर इलाके में बादशाहत करेंगे, रूहानी बादशाहत, तो फिर मिनिस्ट्री वगैरह सब की आप ही की रहेगी। याद रखिए अगर अल्लाह ताला तबाह नहीं करता अनक़रीब इस दुनिया को, रामपुर इलाके को और दूसरे उत्तर प्रदेश इलाके को, तो फिर आपको इलाका मिल सकता है। अगर मुनकिर हो जाएंगे, ये लोग नहीं मानेंगे, तो ज़िम्मेदारी आप लोगों पे आयद होगी। और अगर तबाह हो जाता है तो सिर्फ एक ही जगह बचने की है, वो जगह है मेरी जगह दावतुल मिनल अर्ज़ की, भोंगी नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना, हैदराबाद। क्योंकि हदीसों के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, वेद पुरानों के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक वही इलाका ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का जिसे रब कहा गया, यानी बादशाह। रब माँ बाप भी होते हैं, रब बादशाह भी होता है, रब्बिल आलमीन है अल्लाह सबका बड़ा बादशाह। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों को ये ऑफ़र मैं दे रहा हूँ ख़ास तौर से आपको। अब आप जिस कामों में उलझे हुए हैं छोटे मोटे खिदमत खल्क़ में, ये मैं जो काम दे रहा हूँ ये बहुत बड़ा ऑफ़र है, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट ऑफ़र है, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट ऑफ़र है।
ذرا استعمال یہ اس ویڈیو کو 2-3 بار دیکھیے, 4 بار دیکھیے, غور سے دیکھیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ کے ہاتھ میں ورلڈ کپ بینک آ گیا ہے. پہلے ہی آپ متاثر ہیں علی برادر خاندان سے, اور اس کا پہلا سپوت بڑا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نکلا. مولانا ذوالفقار علی گوہر کا بڑا بیٹا جو مرزا غلام احمد قادیانی کے فتنے میں پھنس گئے تھے مسیح دجال, اور میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اپنے آپ کو اس میں سے نکالا ہوں. جیسا فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ویسے میری پرورش اس خاندان میں ہوئی ہے. لیکن آج حدیث کے مطابق نکلا کہ مسیح دجال کے گروپ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آئے گا اور پاک کرے گا. لہٰذا میں آپ کو یہ آفر دے رہا ہوں. میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام مہادیو بھگوان شنکر آ چکا ہوں. میں وینکٹیشورا نرسمہا سارے میرے ہی نام ہیں, الگ الگ کتابوں میں آ چکا ہوں. اللہ اکبر. میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے اگر تو قبول کیجیے. اللہ اکبر. اب سارے مسلمانوں کو, عیسائیوں کو, یہودیوں کو, ہندوؤں کو, سب کو ایک ہونے کا وقت آ گیا. جھگڑے کا خاتمہ کرو اور جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو, کیونکہ جنت کا بادشاہ, جنت کا ایک سردار آپ کے ساتھ ہے, عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نہ میں پاگل, نہ میں بے وقوف, میں دنیا کا وائزسٹ پرسن قرآن حدیث نے قرار دیا ہے. اور جب لوگوں نے انکار کیا تو دعوت اللہ سے نکل کے کلام کیا ہے. اب شیعوں کو بھی ایک ہونا ہے مسلمانوں کے ساتھ. شیعوں کا جھگڑا, مسلمانوں کا جھگڑا, فرقوں کا جھگڑا, سب کو الگ کر کے ہمیں پوروں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے. پوروں کو علماء دین کو بٹھا کر یہ تحقیق کروانا ہے کیا واقعی وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام میں ہوں یا نہیں. اس کے لیے آپ کو پرسنل خود پہلے تحقیق کرنی ہوگی. 2-3 گھنٹے آپ کو لگانے ہوں گے روز. 1 گھنٹہ لگائیے, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ اچھے پولیٹیشین, دانشمند ہیں تو یہ کام کریں گے. آپ کرنا ہی ہوگا آپ کو اور آپ کے بچے کو. اگر آپ نہیں کر کے دیکھیے, ایک وہ ہوتا ہے شخص جو پورا بکرا کھا لیتا ہے یا پورا بکرے کو پال لیتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو بوٹی کے لیے ترستے پھرتا ہے یا ڈھونڈتے پھرتا ہے. تو ووٹ کو مانگنا, چھوٹے چھوٹے کام کرنا, آپ کو بالکل بوٹی کی طرح گھومنا ہے. یہاں پر پورا ثابت غذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل رہی ہے. لیکن میں وہ بکرا نہیں جو کھا جاؤں, مطلب میں وہ شخص ہوں جو آپ کے ساتھ پورا یعنی خزانے کی چابی بن کر آپ کے پاس آیا ہوں. اور یہ میں خزانے کی چابی اللہ کی طرف سے ہوں. اور ویسے مسیح دجال کی جو ریاست دنیا میں اس نے تیار کی ہے, مرزا غلام احمد قادیانی, جماعت احمدیہ نے 201 کنٹریز میں اور سارے ٹیریٹریز میں, وہ ریاست میری ہے. میرے ساتھ ہو جاؤ سارے مسلمانوں کے ساتھ. لیکن مسلمان ضرور یہ پوچھیں گے کیا ہے آپ کے پاس ثبوت کہاں ہے آپ کے پاس؟ کیسے جواب دیں گے؟ ان میں سے 80% سے زیادہ لوگ جاہل بنے ہوئے ہیں. جمعے کے مسلمان, نام کے مسلمان, عید کے مسلمان, اور صرف کبھی کے مسلمان. ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں گے آپ؟ اور لوگوں کو صرف وہ لوگ شرارت کریں گے, جہالت کریں گے. تو آپ کے پاس علماء دین کا بورڈ کہاں ہے؟ 1000 علماء دین نہیں, میں آپ کو 7 علماء دین کو لے لیجئے, 70 لے لیجئے یا 10 لے لیجئے, لیکن تحقیق کے ساتھ, سیکورٹی کے ساتھ. اگر میں غلط ثابت ہوا, عیسیٰ مسیح نہیں بلکہ کچھ اور ثابت ہوا, تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ جیسے چاہیں گے میں ویسے کروں گا. اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے پراپر تحقیق کر لی ہے, آپ وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں, اور وہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ نہیں, اور وہ دعوت الملل قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. یہ بات اگر وہ ثابت کر دیں تو قیامت تک نہیں کر پائیں گے, نہ کبھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ میں نے اتنی لیول پہ تحقیق کر کے ثبوت جمع کیے ہیں, اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وہ ثابت کر سکے تو پھر اس سے پہلے بولو تم پاگل ہے, مطلب جی پاگل ہے, بولو توبہ کرے جی توبہ. درست میرے نبی بھی توبہ کرتے تھے نماز میں بھی کرتا ہوں توبہ. سمجھے آپ؟ مسلمان پھر سے ہو گیا تو مسلمان ہو گیا تو پھر سے سچ بولنا پڑے گا نا. ہاں تو پھر میں نے 8 مہینے تک اعلان کیا کہ میں خاموش رہوں گا, احمد عبداللہ بن کے تحقیق کرواتے رہوں گا, سوال کرتے رہوں گا کہ بتاؤ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہاں ہے. وہ میں نے دنیا کو گواہ بنایا 8 مہینے تک ویڈیوز. اس کے بعد پھر میں نے اعلان کر دیا کہ میں ہی ہوں وہ, کسی کا مجھے ڈر نہیں. وہ جو ہو رہا تھا وہ ایک لیلا تھی, ہم کرے تو لیلا, تم کرو تو پاپ. لہٰذا کوئی آ کر بول دیا محلے سے یہ مفتی صاحب بڑے ہیں, وہ فلاں بڑے ہیں, تم تباہ کرو, تم جھوٹے ہیں, تو نہیں چلے گا. یہ انٹرنیشنل لیول مسئلہ ہے. قابل لوگوں کو تیار کریں اور میرے ساتھ ہو جائیں. آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں, میں ہی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں, اوریجنل مہادیو بھگوان شنکر آ گیا ہوں, اور آپ کے ساتھ ہونا ہے, اور آپ میرے ساتھ ہونا ہے. وقت تیزی سے جا رہا ہے اور آپ کو تحقیق کر کے ساتھ ہو جانا ہے. دیکھیے میں اتنا بزی کمپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوں الحمدللہ, اور آپ کو یہ تبلیغ کر رہا ہوں, اور آپ کو تحقیقی دعوت ہے, عقل استعمال کیجیے.
अक्खर इस्तेमाल कीजिए, जो सारी पॉलिटिक्स आपने जो सीखा है एज ए पॉलिटिशियन, उसको इस्तेमाल कीजिए और मेरे साथ हो जाइए। सारे वर्ल्ड का मसला है ये, सारे लोगों को बचाना है। और आपको जब मैं एश्योरेंस दे दूं कि ये इलाके में ये रहेंगे राज, क्योंकि इन्होंने मेरा साथ दिया है, माल लगाया है, जान लगाया है, अपने साथ हुए हैं, तहकीक के बाद, उलमाए दीन के सबूत के बाद। उलमाए दीन जहालत में इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं, लेकिन जब बोर्ड बैठ जाएगा, तहकीक की जाएगी, जैसे कादियानियत के बारे में तहकीक की गई, जाहिल लोगों ने की थी तहकीक, परफेक्ट नहीं थे वो, वैसा बोर्ड नहीं चाहिए मुझे। उलमाए दीन का जो ग्रेजुएटेड हो, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, कम से कम वो लोगों का बोर्ड चाहिए। बैठे 2-4 दिन सिक्योरिटी के साथ, आपको सिक्योरिटी फराहम करनी होगी मुझे, मेरे अहले ख़ानदान को। और फिर अगर वो साबित कर देते हैं कि ये झूठा शख्स है, वो मसीह महदी अलैहिस्सलाम नहीं है, एक के बाद दावों की तहकीक होगी सिस्टमैटिक। क्या रसूल नबी में फ़र्क है? ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम ही एक है या अलग अलग है? या ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम क्या अल्लाह के रसूल हैं या खाली इमाम हैं? ज़रा गौर करें। ये सारी ऐसी 1 बाय 1 टॉपिक की तहकीक होगी, जो सिस्टमैटिक तहकीक होगी। उसके बाद ऐलान करना होगा आपको, पूरे उलमाए दीन को बोलना होगा, अरे मैं हक़ में इस्लाम की हूँ, मैंने नबूवत का दावा नहीं किया, अल्लाह होने का दावा नहीं किया। याद रखिए, मैं ताईद इस्लाम में बात कर रहा हूँ। जाहिल लोगों का कुछ नहीं होता, जाहिल लोग हमेशा जहन्नुम में जाते हैं। तो ये उलमाए दीन अगर बोल दें कि आज हमने प्रॉपर तहकीक कर ली, और प्रॉपर तहकीक हमारे पास ये सबूत है कि आप ईसा मसीह नहीं, और आप ये मसीह दज्जाल नहीं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद उसके खलीफा, मसीह दज्जाल फ़िरौन जैसी रियासत नहीं, अगर उन्होंने कह दिया ये दाबतुल अर्ज़ जो निकला है मोर, ये वो नहीं है जिसका जिक्र कुरान हदीस में आया है, साबित अगर वो कर सके, तो मैं जब प्रॉपर पूरों के सामने आप बोलेंगे तौबा करो, तो तौबा करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने अहले ख़ानदान को लेकर अपनी जगह पर चला जाऊँगा, फिर मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, कोई बात नहीं करूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन प्रॉपर तहकीक हो, सिस्टमैटिक हो, इस्लामी ख़ज़ायत के साथ हो। और इस्लामी ख़ज़ायत यानी क़ाज़ी जो बैठेंगे मुफ्ती हज़रात और सदर मुफ्ती के साथ, वो इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला जो सच्चा साबित किया है अपने निशानियों को, महाविष्णु ने, यकोमकार ने, उसको इनकार करके बता दे, अरे मैं ताईद इस्लाम में बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला साबित कर रहा है और आप इनकार कर सकते हैं। इतना बड़ा वो जुर्म करेंगे तो फिर उसके बाद भी मेरा दावा तो रहेगा, लेकिन मैं खामोश हो जाऊँगा। मैं बोलूँगा अब इन पूरे लोगों का जो गुनाह है वो तुम उलमाए दीन के सर, और मैं अपना फ़र्ज़ पूरा किया, दुनिया गवाह रहे और मैं निकल कर जगह पर चला जाऊँगा इंशाअल्लाह। याद रखो, मैं हक़ पर कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ आपको तहक़ीक़ करना है, और आपके अहले ख़ानदान को सलाम, इस बात को बड़ा सीरियस लीजिए। और ये वीडियो मैं सबके लिए आपके लोगों में बांट दूंगा इंशाअल्लाह, और सबको बता दूंगा आपको तहक़ीक़ करना ही होगा, वरना आप कहीं भी भटकते रहेंगे मेरे भाई। आज़म भाई, आप MLA बने, MP बने, मिनिस्टर बने, आप सारे वर्ल्ड का ये इंटरनेशनल इशू आया है आपके पास, और अल्लाह ताला लाया है, ये अल्लाह ताला जिसे चाहता है अता करता है, लिहाजा इसको सीरियस लीजिए अल्लाह के वास्ते प्लीज़।